Hello and welcome. Several students of psychology optional who prepare for civil service examinations find difficulty in understanding one important concept of learning, and that is called probability learning. And you could be one of them. When I was a student, I was also having problem in understanding because it is not given in the regular book like Barron, Morgan, Atkinson. So some additional help is required. So when I started going through the things, that things were very clumsy. Somewhere it was given like Brunner has given some equations to judge the probability learning in lab. I was wondering that actually what is probability learning? Like classical conditioning, operant conditioning, then what is probability learning? This was the question in my mind. And then I came to know that probability learning is one form of cognitive learning. Okay? And what we learn in cognitive, that learning is so-called probability learning. Learning the probability of the outcome. So, what is the probability of getting some outcome? When you make a judgment and you learn from your experience, this is probability learning. So if you try to understand this thing, then the first point that you should keep in mind that it is a cognitive. Nature of probability learning is cognitive. So you can say nature. Nature of probability learning is cognitive. Understood? Now, what is learning? You know this thing that learning involves a change in behavior due to practice and experience, or change in so-called cognition in practice and experience. Okay. So, what if some changes take place either in behavior or cognitions? Then what sort of experience here? Okay. So, just understand this thing that mathematically, when one is called mathematical probability. Getting? When it is very clear without whether you have personal experience or not, but through observation, researcher have found that if you toss a coin, then what would be the probability of getting head? What would be the probability of getting tail? You know this thing that probability is judged in terms of fraction, like 1, maximum probability is 1. So 0.5, everybody knows this thing. So this is the mathematical thing. So what is involved here learning? ये तो कोई भी जान सकता है. जिसको पता है इक्वेशन समझ सकता है. तो ये इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? What is the reason for that? I was wondering that time also. And then I noticed that thing that this is about individual learning about the probability of certain outcomes. जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं और लगता है कि क्या probability है कि मैं इसको क्लियर कर पाऊँगा. Getting? So that one is important. So to what extent that probability judgment, also called learning, is like a mathematical probability, or to what extent is different. So in real life, individual learning is not just like mathematical probability. एक लैब में क्या होता है या एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए क्या होता है वो अलग चीज़ है. सपोज कि मैं किसी काम को करता हूँ, जैसे एग्ज़ाम दिया है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लियर दिस एग्जाम और गेटिंग गुड ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, व्हाट इज़ दैट? वी विल. सो अगर आप मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को देखें किसी भी चीज़ का, प्रोबेबिलिटी लर्निंग जैसे एक्सपीरियंस में, तो आप देखते हैं कि अगर हम जैसे आपको एग्जांपल से मैंने दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 0.5. इफ यू टेक टू कॉइन टुगेदर एंड बट इफ यू टॉस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कॉइन एज टेल और हेड? तो आप समझ में आएगा कि 0.25 है अगर आप दोनों एक साथ चाहते हैं. दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. It is a mathematical thing, it is a logical thing.
ये मैथमेटिकल लॉजिकल प्रोबेबिलिटी है. सो दिस इज पार्ट, बट this is not the only thing in probability learning. So come one step forward. In individual probabilities, probability learning, I have written probab. Means individual probability learning means individuals, how individual learns that probability. So in part it is mathematical logical probability, so you can say statistical probability, जो रियलिटी है, इसी को मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. ठीक है, प्लस माइनस बायसेस. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट. सी इन साइकोलॉजी व्हाट इज द नोटेबल थिंग, दैट प्रोबेबिलिटी लर्निंग मीन्स यू आर, सपोज हम दोनों हेड टेल खेल रहे हैं. Then what is the probability of getting tail and what is the probability? Mathematically it could be calculated. But I am giving you one example. Suppose लगातार आप जीत रहे, you have won 4 consecutive trials. 4 बार आप लगातार जीत रहे. On the 5th trial, suppose I am going to make a head and tail. You may have some bias that ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अगली बार तुम ही हर बार क्यों जीत सकते? It is very unlikely. So this is called bias, and that is that it is a subjective things, subjective expectation. Bias means it's a general word. It could be emotional bias also, it could be cognitive bias also. Getting my point? अब इसको biases को हम अलग से explain करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते. So if you inaccurately judge, if you do not respect the mathematical probability, and you inaccurately judge that this time I have more chances to win, emotionally, ऐसा कुछ नहीं. मैथमेटिकली ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस ट्रायल. एक बर्नौली इक्वेशंस होता है जिसमें आप ये देखोगे ट्रायल जब इंडिपेंडेंट हो तो उसका इन्फ्लुएंस एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता. बट यू आर कनेक्टिंग विदाउट एनी बेस, यू आर कनेक्टिंग द कि 4 बार आप जीत चुके, यू हैव वोन द 4 ट्रायल्स. How it would be possible that next time we or you and me will have the same probability to win? So many people find it difficult to understand. नहीं लगातार. And I will tell you one thing. इसको क्या कहा जाता है? गैम्बलिंग में इसको कहते हैं गैम्बलर फॉलिसी. फॉलिसी मीन्स बिलीव्स. फॉलिसी मीन्स बिलीव्स दैट किसी का लगातार जीत रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगली बार में कम हो जाएगा, जबकि हर बार इंडिपेंडेंट है. गैम्बलर पॉलिसी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी लर्निंग. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ कम फॉरवर्ड दैट व्हाट इज द थ्योरेटिकल थिंग्स. अगर आप इसको, क्या कोई रिसर्च वगैरह हुई है इस पर जिसमें जिस बात को प्रूव करता है? सो लेट मी टेल यू, डैनियल कैनमैन एंड टवर्स्की, दो एक ऐसे है, ये पर्सन बहुत ही नाम, इसका नाम है ज़्यादा. ही हैज़ वन नोबेल प्राइज, नॉट विथ टवर्स्की बट विथ सम अदर इकोनॉमिस्ट. गेटिंग? सो हिज फेमस रिसर्च, दैट वन ऑफ हिज रिसर्च with along with, he says that he made presentation some pattern. जैसे हम एक टेल हेड को जो एक हेड टेल कर रहे हैं, तो एक ये और ये जस्ट किया, देखो दिस वन all tail, all heads and mixed one, and this pattern was asked, this pattern was given to the audience to judge that which one is more likely. Most of the individuals, means more than 90% of individuals said this one is more likely. On the basis of that, he formulated a principle that random looking outcomes
रैंडम लुकिंग आउटकम मिक्स है, देखो हेड टेल ऐसे आ रहा है, हेड टेल भी हो सकता है ना, is judged as more likely than orderly outcome, because in real world this happens that statistically this is possible. अगर हम एक सिक्के को 4 बार उछालें, ये पॉसिबल है कि नहीं, स्टैटिस्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं कि 4 बार हेड आ जाए, आएगा, पॉसिबल है कि 4 बार टेल आ जाए, आएगा। लेकिन लोगों से जब आप कहेंगे तो कहें नहीं, ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं, मिक्स वाले के चांसेस ज़्यादा। Now with the help of this research finding, try to understand the probability learning. Daniel Kahneman and Tversky has done extensive research on that one. So it's that probability judgment or probability learning in real life is not just mathematical probability. It is mathematical probability, no doubt, we calculate also, but it involves biases also. Getting biases. It could be emotional biases or it could be cognitive biases. अगर हम थोड़ा biases को elaborate करें तो ये जो मैंने लिखा है इक्वेशन उसको समझते हैं। Biases, you know this thing. Bias comes in two forms, cognitive and emotional. Non-cognitive और कह सकते हैं emotional. Cognitive bias. अभी टेल आया, अगले ट्रांस में फिर आप टेल जज करोगे, ज़्यादातर लोग नहीं करते। सो रिसेंसी इफेक्ट इज ए बायस, कॉग्निटिव बायस, मेमोरी इन्फ्लुएंसेस योर लर्निंग। सो कॉग्निटिव, फॉर एग्जांपल रिसेंसी इफेक्ट, समथिंग इज अंडरस्कोर्ड वेरी हैवीली दैट दिस कोई चीज़ बार बार आया हो एक ही बार, दैट बिकम एंकर्ड थिंग, एंकरिंग, दैट इज ए बायस। दिस इज कॉग्निटिव बायस। Getting? Likewise, I have said that there are other kind of cognitive bias also, need not to count all the things that you will learn in thinking and problem solving. Emotional biases. What is emotional biases? When you think that this is my lucky day, when you say that I have this taweez of something, this is my lucky day, lucky number, जैसे क्रिकेटर जो है वो जाते हैं फटे हुए टी शर्ट को लेके या रुमाल लगाकर, आपने देखा होगा, नोटिस किया, all the superstitions that you see is not because of the cognitive but the mix of the thing, that basically it is emotional bias. You feel that this will, जैसे आप मिलिट्री साइकोलॉजी में एक प्रोबेबिलिटी लर्निंग है कि दैट व्हेन सोल्जर बिलीव दैट इट इज ऑल्सो लाइक गैम्बलर फॉलिसी, इट इज इन साइंस इट विल बी कॉल्ड ए फॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या कि जिस बुलेट पे मेरा नाम लिखा नहीं हो वो मुझे टच नहीं कर सकता। बोलो, बुलेट पे नाम लिखा होता है कि नहीं होता, बट समथिंग लाइक दैट यू बिलीव, यू हैव सम अटैच्ड इमोशन विथ इट, सो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, इमोशनल बायसेस। गेटिंग? सो पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल इमोशंस, आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि लक्की डे, समथिंग समथिंग समथिंग, है ना, लकी नंबर, लकी डे, ये सब जो करते हैं, दैट इज नॉट कॉग्निटिव, इमोशनल थिंग्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? सो हैव अ क्विक रिकैप दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी लर्निंग? द लर्निंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम, judging the probability of the outcome on the basis of experience. So how probability learning in psychology different from probability learning in mathematics, probability judgment in mathematics? Because in mathematics only a statistical probability matter, but here not only a statistical probability, plus minus biases is also there. You are getting my point? अभी किसी को लगता है कि मैं जीत सकता हूँ, किसी को ये भी लगता है कि मैं कभी जीत ही नहीं सकता हूँ, plus minus biases. Getting my point? So that is very important things to note. So in psychology, I was also wondering that time that why do we study this kind of probability learning, mathematical probability, Brunner. अभी मैं आपको एक बता दूँ that this is the maze kind of things, no? And here is food and here is nothing. A rat is here. And then at the choice point, what is the probability will turn left or right? Depending upon the reinforcement, very soon rat learns to turn toward the food.
सो दिस वे यू कैन जस्ट दिस थिंग. ब्रूनर ने बहुत सारे रिसर्च किए. ब्रूनर इज ए फेमस नेम. Made an assessment of this kind of probability in lab-like situation, control situation. But what happens in real life? जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को जज करते हैं. व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी टू दिस थिंग? आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में. व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टॉक विल गो अप, इट विल गो डाउन? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? अंडरस्टूड? सो ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल जजमेंट, प्रोबेबिलिटी लर्निंग, यू मेक योर डिसीजंस. प्रोबेबिलिटी लर्निंग का सबसे बड़ा यूज डिसीजन मेकिंग में है. ऑल द डिसीजंस दैट यू मेक इज बेस्ड ऑन योर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट. अंडरस्टूड? सो प्रोबेबिलिटी लर्निंग का एक डिसीजन मेकिंग में, इसलिए डैनियल कैनमैन एंड टवर्स्की इज वेरी रिलेवेंट पर्सन. बट यू मे आस्क दिस थिंग दैट ओके, बट हु आर द अदर थियोरिस्ट हु हैव emphasized or in real life how probability learning matters? So I will help you to understand this thing with the help of another psychologist. See, in real life, you know this thing that Albert Bandura, social learning theory, social learning theory. और सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आपने देखा होगा. अंडर दैट ही टॉक अबाउट अ टर्म्स एक्सपेक्टेंसी. व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? अल्बर्ट बंदुरा का या विक्टर ब्रूम हैज गिवन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, VIE थ्योरी. वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एक्सपेक्टेंसी. दिस वन expectancy. When I say that, this expectancy is nothing but probability. Your expectancy means अगर आप को लगता है कि इस चीज़ को मैं करूँगा तो हो सकता है, ये शेयर ऊपर जा सकता है. When you have expectancy on the basis of something, then it is your probability learning and you may take your decisions. So expectancy is the layman word, or you can say another term for probability learning. So I have given this example that these, हर जगह probability learning जैसा term नहीं यूज़ होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम इसको बहुत यूज़ करते हैं. डिसीजन मेकिंग में probability learning होती हो, लेकिन वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी जैसा वर्ड यूज़ करने लगते हैं. तो मतलब वही है. तो आपने समझा होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी लर्निंग. इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपने देखा. दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बेसिक प्रीमाइज लर्निंग का है कि दैट चेंज इन बिहेवियर और पोटेंशियल बिहेवियर सो कॉल्ड कॉग्निशन ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. तो एक्सपीरियंस से क्या बदलाव? तो मैंने बोला मैथमेटिकल इज ओके, बट वी हैव सर्टेन बायसेस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रोबेबिलिटी लर्निंग इन रियल लाइफ. तो रियल लाइफ और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है, ये भी आपने समझ लिया. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. 10 मार्कर में आते हैं, इसके यूज आते हैं. आप समझ सकते हो कि हर जगह आप इसका यूज़ करें. जैसे मैं आप लास्ट में क्लोज करूँगा इसको बोल के कि एट ब्यूटीफुल माइंड भी प्रोवाइड टीचिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च. तो काउंसलिंग में भी है हम लोग, है ना. तो काउंसलिंग में भी एक बड़ा यूज़ होता है कि दैट किसी को डर लग रहा है कि प्लेन से ट्रेवल करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, डर लग. तो आप उसको मैथमेटिकली समझाते हो ना कि रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन के कम होते हैं. दिस इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, बट दैट पर्सन इज फीलिंग फियर बिकॉज ऑफ हिज ओन प्रोबेबिलिटी जजमेंट. आपको लगता है, बट लेकिन उसको लगता है कि नहीं, वो प्लेन कुछ होगा तो मैं लैंड कहाँ करूँगा, मैं तो हवा से गिरूंगा, मरूंगी. ऊपर से गिर के तो मरना तय है. तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग. इट इज़ नॉट लाइक दैट. बायसेस उसके अपने हैं. मैथमेटिकली आप कितना भी समझा लो. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थेरेपी गोल इन थेरेपी इज दैट रिस्टोरिंग द ऑब्जेक्टिविटी. गेटिंग? ये प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट जो है ना, जहाँ भी बायसेस है जिसके कारण से उसका जजमेंट खराब हो रहा है और उसके कारण से हैंडीकैपिंग इमोशंस आते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए धीरे धीरे अलग अलग टेक्निक्स हैं उसके. दैट इज़ बियॉन्ड दिस स्कोप हियर. तो उसको यूज़ करके हम उसके जो बायसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको क्लोज करते हैं, अलाइन करते हैं किसके, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. तो उसका ऑब्जेक्टिविटी रिस्टोर होता है और उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम
ठीक हो जाता है ना, यही है ये पूरा कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी लर्निंग। और इसी तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है और कोर्स करना चाहते हैं हमारे साथ ब्यूटीफुल माइंड IAS UPSC एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारा जो अपकमिंग बैच है, एक तो जून में शुरू हो रहा है, 3 मंथ्स के कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है 4 आवर्स के, वो 3 महीने में 13 जून से शुरू होकर 13 सितंबर में ख़त्म होगा। डेली 2 क्लास है, यानी कि 4 आवर्स की क्लास डेली होगी। एंड यू विल गेट क्लासेस, यू विल गेट टेस्ट, यू विल गेट about 150 to 200 model answers of PYQ and material, and not most important, one-to-one interaction and personal guidance। तो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए एडमिशन खुले हुए हैं, आप एडमिशन कर सकते हो। जाहिर सी बात है, हम 30 लोगों को इनरोल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो जहाँ अगर कहीं भी पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर आप ब्यूटीफुल माइंड में पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन जॉइन अस, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपके कोई और भी डाउट्स हो, तो यू कैन राइट द योर कमेंट इन द मैसेज कमेंट बॉक्स, ये जो मैसेज उसमें अपने डाउट्स लिखिए। मैं आई विल ट्राई टू टेक दैट क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच।